Yes, we are starting few commands in Excel. Excel is, as you know, very useful tool for management, sales analysis, and somewhat of future calculation. You can do it. Here we are doing some of the functions of Excel, which normally we are avoiding it. We'll start it. First of all, like this is my sales register. जहाँ पे मेरे bill number है 1, 2, 3, 4. These are my invoice number. It will go on increasing. These are my customers. Brand which I am selling. That's a make of the company, a product, quantity, rate, and value. Now I want a total here party wise. So what I have to do first, I have to sort it. I can do total when Tata Sons all entries are together. मतलब Tata Sons के तीनों entries अगर एक साथ होगी तो ही हम उसको टोटल कर सकते हैं. इसके लिए एक्सेल में होता है सॉर्ट, which normally most of the people are knowing. तो यहाँ पे हम we go in data and we find a command sort. It asks you on sort. First is always a heading. पहला bill number, bill date वगैरह है. So it is showing here. It is a data header. If first is not a heading, you can remove it. Then this will also treat it as one of the content. हमने इसको first as a data header लिया है. Sort by I says customer name. So these entries are arranged by name of customer's order. I want now total. So we have to tell three things to the customers. First to the Excel. First total कब चाहिए? When you want a total. तो जब दो पार्टीज चेंज होती है, then we want a total. मतलब after Amit Industries, after Bata, after Reliance. So at each change in name, and then total of which columns? I want total of value and quantity. So this is known as a subtotal. मुझे जिस पे टोटल चाहिए पहले हमने उसको उस पे सॉर्ट करा है. I'll go for subtotal. Ask him at each change in. Now I'll say your name. What you want? I say sum of which column. तो हमने दो column select किया. I select name as well as quantity as well as value. So I want total of quantity and value. When you want a total after each change in name, and what you want sum. Suppose I want to just count it. I can take a count. That will show me इस customers के कितने invoices बने. Number of entries will come. Okay. So this is now a subtotal. So after Amit Industry, there is a total. After Bata India, there is total. After Reliance, there is a total. See, we cannot do total of rate. So I've selected only quantity and value. Now we go one more step ahead. I just want a summary. मतलब Amit Industry, Bata and Reliance. I want a summary. In particular, name की total कितनी थी? मतलब only this subtotal I want to see. Entire detail मुझे नहीं देखना है. So here you can find the three buttons 1, 2, and 3. I just press a 2. So this is giving me just a summary. So if there is a school, all roll numbers, name and fees is there. I want to just see a summary of किस students का कितना fees आया. I can just use this facility. Now I had some doubt about Bata India. I want to see how this 28 come. I can expand only Bata. मैं चाहता हूँ केवल इसी के transactions दिखें. तो हमने एक level का expand करा. फिर collapse कर दिया. If I put a 3, it gives me only detail. 2 subtotal. If I write a 1, it gives me only a grand total. So this is subtotal in Excel. I want once again back. I just select and I have to say remove all. So this is my normal entries. Now, next thing we'll learn a pivot table. Before that, still I want to make a small process. ये जो process था subtotal का, इसमें मुझे और छोटा करना है कि इसमें से मुझे टाटा सन्स की टोटल चाहिए केवल और अप्सरा की टोटल चाहिए. तो अभी आप सॉर्ट करेंगे सब. ऐसा ना करते हुए सिंगल लाइन से हियर ब्रुक बॉन्ड. अब ब्रुक बॉन्ड की जगह आई राइट अ लिप्टन. So see, I am getting total of Lipton in a single steps. I want a total of Apsara. I get a total of Apsara. How? तो मुझे पहले select करना था. इसको हमारा data area बोलेंगे. So this is my range from B1 to E13. So I have to tell three things. B1 से E13 is my criteria. उसमें से किसका total चाहिए? I want a total of E column. और किसके लिए चाहिए? तो मुझे अप्सरा के लिए चाहिए. तो मुझे तीन अप्सरा मैंने कहाँ लिखा है जिसका टोटल चाहिए? वो I1 में. सो दिस इज नॉन एज ए सम इफ. सम इफ. तो देखिए यहाँ पे आई पुट सम इफ. यहाँ पे लिखा है किस में से? रेंज इज B to D. दिस इज माय रेंज. किसका टोटल चाहिए? जो कुछ मैंने L1 में लिखा है, I1 में, सॉरी, तो I1 में लिखा अप्सरा. और किसका टोटल चाहिए? तो D कॉलम का टोटल. आई राइट कॉलम ऑफ विच आई वांट अ टोटल.
So this gives me automatically sum of that particular column. So Apsara essence ढूंढा, I get a total. So this is known as a sum if. अगर मुझे small totals किसी चीज से, I just write a Lipton, I get a total of Lipton. Okay, so in a single line I can use a sum if. जो मैंने सब total वाला process करा वो मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है. फाइन, यहाँ पे देखिए तीन चीज लिखा है. सम इफ, मतलब बी से डी में सेलेक्ट करना है, I1 में जो लिखा है, और टोटल चाहिए हमें डी कॉलम का, या जिस पर्टिकुलर कॉलम की टोटल आपको चाहिए. Now we'll see a pivot table. Normally once we select a pivot table, we feel that it is more complicated, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं. But pivot table is not matter of more than a 30 second of 1 minute. Pivot table means मुझे यहाँ पे पार्टी वाइज और प्रोडक्ट वाइज टोटल चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 पार्टीज लिखूंगा और कॉलम में प्रोडक्ट लिखूंगा, और मुझे चाहिए क्वांटिटी का टोटल आ जाए. जितना भी मेहनत अभी करा वो और शॉर्ट हो जाएगा. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग, एंटायर सेल पहले सेलेक्ट करा, विल गो इन इंसर्ट एंड पाइवोट टेबल. इट इज आस्किंग whether result you want the same sheet or some other new sheet. I says new sheet. अब यहाँ पे मुझे कॉलम्स में रो में नेम चाहिए, तो आई जस्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम हियर. सो ऑल नेम कम ओनली वंस, एक एक बार सारे नेम आ गए. इधर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने यहाँ पे कॉलम में प्रोडक्ट लिखा. आई जस्ट सिंपली ड्रैग इट एंड आई वांट टोटल ऑफ वैल्यू. So this is simple. I don't think it has taken more than 30 सेकंड, जैसा मैंने कहा था. तो सिंपल आपको एरिया सेलेक्ट करना है, कॉलम और रो में आपको फिट करना है किसे आप चाहते हैं, और एक नया शीट बन गया है पे, शीट 7. मैं वापस मेरी ओरिजिनल शीट में आता हूं. अब मुझे यहाँ पे पार्टी वाइज ब्रांड वाइज टोटल चाहिए. आई जस्ट टेक दिस इज माय पार्टी, सॉरी नेम इज अ पार्टी एंड दिस इज अ प्रोडक्ट, और मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए. जस्ट रिपीट पाइवोट टेबल. मैंने फिट सेलेक्ट करा, दिस इज वेरी क्लियर. यहाँ पे A1 से लेके A13, इंसर्ट पाइवोट. ये पूछता है एरिया सेलेक्ट करा, यू वांट अ न्यू शीट, और इसी शीट में रिजल्ट चाहिए, तो मुझे न्यू शीट चाहिए. तो यहाँ पे एक शीट 8 बन जाएगा. ओके, एक नया शीट बन गया. अब हेडिंग्स में क्या चाहिए, कॉलम्स में, तो हम इस बार रिवर्स कर दें. ऊपर हमें कस्टमर नेम चाहिए, तो कॉलम हेडिंग्स आ गए. इसमें हर कस्टमर एक बार आएगा. यहाँ पे मुझे मेरे ब्रांड चाहिए, यहाँ पे ब्रांड आ गए, और टोटल मुझे क्वांटिटी का चाहिए. सो दिस इज अ सिंपल पाइवोट टेबल. ये पूरी समरी बन गई. यहाँ पे आ गया अप्सरा का टोटल, यहाँ पे आ गया कंपनी का टोटल, और ये मुझे ग्रैंड टोटल मिल गया. तो जो सब टोटल करा, सबमिट करा, उससे भी एक ब्यूटीफुल टूल हमें मिल गया. सो सबमिट इज क्लियर, सब टोटल इज क्लियर, और उससे और हमने बेटर करा अभी पाइवोट टेबल. कैसा भी, लाइक स्कूल है तो उससे चाहिए किस क्लास में से कितना फीस आया, तो स्कूल में कॉलम का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस एंड क्लास, वो पाइवोट टेबल कर ले, क्लासेस को कॉलम कर ले. मुझे चाहिए कि मंथली सेल कितना हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास डेट का भी कॉलम है, तो आई वांट अ मंथली सेल. आई जस्ट टेक 1 मिनट. हम यहाँ पे कुछ डेट लिख देते हैं कि कौन सी डेट को सेल हुआ. यहाँ पे मान लीजिए 5th मई, 5th मई, 5th मई, 6th मई, 6th मई, 7th मई, 7th मई. आई जस्ट कॉपी इट. मुझे डे वाइज सम चाहिए, तो आई जस्ट सेलेक्ट वंस अगेन. हर रोज कितना, कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, सेलेक्ट करा, इंसर्ट, दिस इज क्लियर, पाइवोट टेबल, नेक्स्ट शीट. अब यहाँ पे मुझे डेट 30 है, तो मैंने यहाँ पे डेट को रो में ले लिया. कौन सी ब्रांड की कितनी सेल हुई उसको कॉलम में लिया.
और क्वांटिटी या वैल्यू जिसका हमें टोटल चाहिए। तो मुझे हर डेट का सेल मिल गया। सो दिस इज पाइवोट टेबल। वेरी क्लियर नाउ। हमने 3 एग्जांपल्स देखे विच आर मोर देन सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि मुझे कुछ वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू चाहिए। मतलब मैं मान लीजिए हर साल बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, 5 साल बाद कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, लाइक 1 जनवरी 2010 को बैंक में 0 रुपए थे, मैंने उस दिन 900 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे 1 जनवरी 2010 को। तो साल भर तक मेरे बैंक में 900 रुपए रहे, तो मैंने लिखा पुराना पैसा था प्लस नया डिपॉजिट। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब मुझे बैंक में इंटरेस्ट मिला, तो मैंने फिर एक फॉर्मूला लिखा 10% से, तो 900 रुपए का 10% 90 रुपए इंटरेस्ट हो गया। तो 31 दिसंबर 2010 को मेरी बैंक में मेरा डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट तो 990 रुपए हो गया। हम लोग सब यूज करते हैं। अगले साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग रहा, तो मैंने फिर एक फॉर्मूला लिखा। अभी 990 कैसे आया, तो यहाँ से आया। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक्सेल में एक होता है कि फॉर्मूला आपको दिखाता है कि कहाँ से आया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रेस प्रेसिडेंट। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया मुझे पता लगता है। किसी और की एक्सेल शीट बनी है तो दिस इज वेरी गुड, उसको ऑडिट बोलते हैं। फिर कॉपी पेस्ट करा, तो 5 साल बाद मुझे वैल्यू मिली। अब मुझे इतनी भी एक्सरसाइज नहीं करना है कि यहाँ पे 5 साल की मैंने 5 कॉलम रो करे, कॉपी पेस्ट करा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इन सिंगल स्टेप्स आई कैन फाइंड आउट। तो देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे एक ही सेल में लिखा, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। किस रेट से, तो से 10%। कितने साल बाद, मैंने कहा 5 साल बाद, और 900 रुपए की। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5459 जो इधर आया। मुझे देखना है कि 6 साल बाद 10% से 900 रुपए कितने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्यूचर वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, और कितना वैल्यू। तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे 6944 जो मैंने यहाँ मेहनत करके 6 रो पे कॉपी पेस्ट किया था। सो दिस इज फ्यूचर। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलाज यू टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर, लाइक फाइनेंशियल। तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मुलेज मिल जाएंगे और आपको उसको रीड करना होगा। करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, एक्सेल में एक रिवर्स कैलकुलेशन होती है और एक नेम होता है। नेम का ये मतलब होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऑडिट के हिसाब से दीज आर माय इनकम हेड्स। तो मेरी टोटल इनकम है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है। अब मुझे इस इनकम का 10% चाहिए, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा C35 इंटू 10/100। इसका 10% चाहिए तो आई राइट C41। अब यहाँ जाके मैं भूल जाता हूँ कि इनकम कहाँ लिखी है, तो इस सेल को मैं अपनी तरफ से एक नाम देना चाहता हूँ। जैसे हर कॉलोनी में हर मकान का एक नंबर गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 101, 102, 103। बट हम चाहते हैं कि ये अग्रवाल जी का मकान है या मिस्टर गुप्ता का मकान है या शर्मा जी का मकान है, तो हमने अपना नाम डिफाइन करा। यहाँ पर्टिकुलर सेल को मैं अपना नाम क्रिएट कर सकता हूँ, ताकि मैं उसको आगे से I2 I7 ना लिखते हुए मेरा वर्ड लिखूंगा मैं। तो पहले कर्सर हमने वहां रखा जिसको नाम देना है। दिस इज वेरी क्लियर। फर्स्ट डिफाइन नेम, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में आपको एक मिलेगा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में क्रिएट वट एवर नेम आई वांट टू गिव, तो मैंने इसको नाम दे दिया INC। ये मेरी इनकम हो गई। अब एक्सेल इसको INC से पहचान सकता था। जैसे मैंने कहीं जाने के लिए हम कंट्रोल जी या गो टू यूज करते हैं, मैंने लिखा INC, कर्सर सीधा इधर आ गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ INC, कर्सर सीधा वहां पहुंच जाएगा। ऐसे इसको नाम हमने दिया एक्सपेंसेस। फिर कैसे गए, फॉर्मूले में गए, डिफाइंड नेम में गए, नाम दिया और ओके कर दिया हमने। तो इस पर्टिकुलर सेल को हमने नाम दे दिया एक्सपेंसेस। अब कभी मुझे प्रॉफिट चाहिए कहीं पे भी, तो आई कैन राइट इक्वल टू INC माइनस EXP, सो वी गेट अ टोटल हियर। वेरी क्लियर। अदरवाइज आप क्या करते हैं, ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू, फिर कर्सर को वहां ले जाते हैं, फिर माइनस का साइन दबाते हैं, फिर कर्सर को यहाँ ले आते हैं। तो और ये भी थोड़ा सा इजी तब पड़ता है जब वहीं लिखा हो। लेकिन मान लीजिए अपने रो नंबर 12 में प्रॉफिट है और आपको 2000 रो में चाहिए, तो आपको बार बार पेज अप पेज डाउन करना पड़ता है। तो हमने नेम डिफाइन करके सिंपल कर दिया। यहाँ मैंने नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब आते हैं एक्सेल में थर्ड, ये मेरी शीट में आपको क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट। तो ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि ये कहाँ से आया है, और एक रिवर्स होता है कि इसको चेंज करेंगे तो कहाँ फर्क पड़ेगा, मतलब इस पे कौन डिपेंडेंट है। तो दो चीज, किसी बच्चे से पूछा आपके मदर फादर का नाम, और मदर फादर से पूछा आपके बच्चों का नाम, तो ट्रेस, डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज होगा, और एक ऊपर कहीं मैंने कुछ लिखा होगा वो चेंज होगा। तो दिस आर किसी और की शीट को समझने के लिए ऑडिट इज वेरी यूजफुल। हटा देते हैं हम रिमूव एरो। एक आता है एक्सेल में रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे सिंपल कि उसको हम बोलते हैं गोल सीक।
यहाँ पे शुगर 120 रुपए का है, टी 80 का है, ब्रेड 100 का है, ऑयल और टोटल 350 सम करके टोटल आ गया जैसा नॉर्मली हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 325 रुपीज थे या 300 रुपीज थे, तो उन्होंने कहा जो भी कम पड़े तो आप ब्रेड कम की खरीदें। आई वांट टोटल एज 300, तो बोले ब्रेड को 50 रुपीज कर दीजिए। तो दिस इज सिंपल। यहाँ हमने खुद यूज किया, लेकिन अब ऐसी कुछ वैल्यूज हैं। अब टोटल आया 1696.27, 1,69,627। अब हमको 1,56,000 में काम करना है, तो बोले जितना कुछ कम पड़े वो शुगर कम कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 156 में से 169 माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उतनी 82 में से लेस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, रिवर्स कैलकुलेशन हम चाहते हैं एक्सेल खुद हमारे लिए करे, लेकिन पहले बार फ्रंट कैलकुलेशन लिखी होनी चाहिए। तो अब हम एक्सेल को तीन चीज बताएंगे। फर्स्ट, हमें किस सेल को सेट करना है, तो हम कहेंगे G34 को हमें सेट करना है, करंट कर्सर G34 में है। वहां क्या वैल्यू चाहते हैं हम लिखेंगे 1,56,000, और उसके लिए किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे वैल्यू हम चेंज करेंगे H30। ये तीन चीज हम बताएंगे। तो इसको बोलते हैं गोल सिक। विल कॉल एज ए गोल सिक। डेटा में जाएं, कुछ एक्सेल वर्जन में गोल सिक बाहर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे व्हाट एनालिसिस में गोल सिक, यहाँ पूछ रहा है किस सेल को सेट करना है, तो हमने कहा मैं इस पर्टिकुलर सेल को सेट करना है किस वैल्यू पे, 1,56,000, और बाय चेंजिंग, तो बाय चेंजिंग शुगर। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन होगी, शुगर की वैल्यू चेंज होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको हमें 1,45,000 पे सेट करना है, और जो कम होगा उतने का हम ऑयल कम खरीदेंगे। तो डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, सेट सेल G34, वैल्यू 1,45,000 बाय चेंजिंग प्राइसेस, ऑयल का जो वैल्यू है। अब ये डिपेंडेंट के डिपेंडेंट में भी कर सकता है। हम अपनी शीट पे आ जाते हैं इधर, लाइक कुछ इनकम्स के हेड है तो दिस इज इनकम, कुछ एक्सपेंसेस के हेड है तो ये इनका टोटल करा, तो यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, अब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, तो नेट प्रॉफिट पे निकल गया हमारा अब हम चाहते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2,85,000 को 2,75,000, तो 20,000 से कम करना है। तो उन्होंने कहा जो भी कुछ है वहां पे इनकम कम कर दीजिए, फीस। इनकम को कम नहीं कर सकते, ये भी टोटल कहीं से आया है, तो हमने एक पर्टिकुलर हेड फीस को कम करना है। या आप और स्टेप कर सकते हैं कि यहाँ पे इनकम आ गया, ये फॉर्मूले से आया, इसका 20% टैक्स आया 57,000, हमने कहा हमको 55,000 टैक्स भरना है, तो इसके लिए इनकम कम होगी। इनकम कम होने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ेगा या इनकम का कोई हेड कम होगा, हमने कहा अकॉर्डिंगली आप हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ा दीजिए, तो यहाँ 55,000 का टैक्स हो जाए। रिवर्स कैलकुलेशन 3 स्टेप्स पीछे हो जाएगा, ये इधर से आया है, ये पेट्रोल यहां से आया है, ऐसा आया, ऐसा आया है। तो यहाँ पे हम गए वापस डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक, टू सेट सेल, टू विच वैल्यू 55,000 बाय चेंजिंग, तो हमने कहा बाय चेंजिंग पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो अकॉर्डिंगली पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल एक्सपेंसेस आपका 10,000 से बढ़ गया, 10,000 पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ा, तो टोटल एक्सपेंसेस बढ़ा, तो प्रॉफिट 10 से कम हुआ, उसको 25%, 20%, 2,000 रुपये टैक्स कम हो गया। सो दिस इज नॉन एज ए गोल सिक, दैट इज अ रिवर्स कैलकुलेशन। तो आई रिपीट, हमने एक टोटल सब टोटल पढ़ा, उसको शॉर्ट में सम इफ से काम करा, फिर उसके बाद पाइवोट टेबल पढ़ा, एक फ्यूचर वैल्यू देखा, तो ये 5 सेल में जो काम करा है वो फ्यूचर वैल्यू से सिंपल एक ही बार में हो गया। देन वी हैव सीन नेम इज क्वाइट यूजफुल। Then after that we seen audit, by which arrow it has shown. Then we have checked goal seek. Goal seek is for reverse calculation.
सी नेम इज सो यूजफुल, अगर कर्सर मेरा बहुत नीचे कहीं तो भी है, यहाँ पे 301, अब मुझे यहाँ चाहिए टोटल प्रॉफिट, आई कैन राइट इनकम माइनस एक्सपेंसेस। आई कैन गिव नेम टू रेंज ऑल्सो, एक पर्टिकुलर रेंज को भी नाम कर सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी क्वांटिटी है, तो हम इसको सेलेक्ट करा, हमने यहाँ पर डिफाइन नेम क्वांटिटी, दिस इज क्लियर, सेलेक्ट करा, एक नेम दे दिया क्वांटिटी। अब यहाँ कहीं है किसी ने क्वांटिटी का सम चाहिए, तो आप क्या करते हैं, ऊपर जाएंगे, इक्वल टू सम लिखेंगे, आई जस्ट शो कैसे, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट, फिर कर्सर को हम ऊपर ले जाएंगे और जो भी कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ ना करें, इक्वल टू सम ब्रैकेट क्वांटिटी, ऑटोमेटिक टोटल आ गया बेटा। मुझे क्वांटिटी को डार्क करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे क्वांटिटी लिख के एंटर करा, कंट्रोल पी दबा दिया, देखिए बोल्ड हो गया, क्योंकि इस पूरे रेंज को ही हमने क्वांटिटी दिया था। यहाँ जैसे हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करा, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंसेस, तो सीधा एक्सपेंसेस वाले सेल पे मुझको ले आएगा। तो आपको पेज अप, पेज डाउन, कर्सर मूवमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव सीन फ्यू थिंग्स लाइक पाइवट टेबल, सब टोटल, सॉर्टिंग, देन फ्यूचर वैल्यू, सम इफ, ऑडिटिंग, गोल सिक। So these are the small tools. Rest कुछ है that we'll see in our second one. So we at Computer Concept, we are Tally partner, and we are giving services to more than 2,500 customers. If you need further any assistance on MS Excel or Tally, you can contact us. Telephone numbers are given here. We are in town with 2,500 more customers. Thank you. Thank you.